मेरा नाम दीपांकर चौधरी है। मुझे इस साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में 42nd रैंक मिला है। इसके पहले 2018 में एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था एज एन IPS ऑफिसर, और मैं करेंटली आई वाज वर्किंग एज एन IPS ऑफिसर इन केरला। आई वुड वांट टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरी इनिशियल एजुकेशन हज़ारीबाग में हुई, फ्रॉम सेंट ज़ेवियर्स हज़ारीबाग। Thereafter I did my further schooling from DPS RK Puram in New Delhi, and उसके बाद I graduated from New Delhi Technological University, DTU, earlier known as DC, Delhi College of Engineering. 2015 में मैं graduate हुआ, and then I was working for a while. 2016 में I started my preparation for civil services. 16 I couldn't clear the examination, 17 I couldn't clear the examination, 18 in the 2018 examination मेरी selection as an IPS officer हुई, and although I got started my training and I then got posted in Kerala, but मैंने फिर से exam दिया था, and thereafter like I said I secured All India rank 42 in 2019 civil services examination. Now I'm going to discuss about my optional, why I chose that optional, and what sources I referred to, and how to go about preparing that optional. So first of all, मेरा optional public administration है. Why did I choose this optional? This is a question a lot of people ask me. Even interview board में से ये question पूछा था उन्होंने. So मैंने graduation की थी in mathematics and computing. There is no optional called mathematics and computing in the list of optionals given by UPSC. There is an optional called mathematics, but mathematics is very different. That mathematics is very different from the kind of mathematics I studied in college. It was basically a lot of programming and application oriented mathematics which I studied. Golden opportunity for all UPSC CSE aspirants. Unacademy has brought the world's biggest gamified battle, Unacademy Combat, absolutely free of cost. In this battle, you will be competing with thousands of aspirants. The combat is held on every alternate Sunday. Hence, the coming combat will be on 17th of January 2021 at 11 AM. Enroll for free in this test series and get a chance to win Unacademy subscription and amazing Amazon vouchers if you give the combat test live. What is Unacademy Combat? It is the golden opportunity for all UPSC CSE aspirants to check their knowledge on all the subjects. In this quiz, you will be getting the top-notch questions by Unacademy's top educators, and later they will be providing you with a detailed video solution. After every question, you will be getting the right answer for the question, and you can see your rank and rating on the leaderboard if you are giving the Unacademy Combat quiz live. Do not wait, start your preparations now with Unacademy Combat. To enroll in this quiz, click on the mentioned link in the description, download the Unacademy app, select your goal as UPSC CSE, enroll in Unacademy Combat. Use your code DKT10 to unlock this quiz and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. Moreover, I had a very good mentor, Mr. Smar Ranjan, who, though I didn't take coaching from him, but मैं उनके घर जाता था weekends पे, and I used to sit with him and discuss about public administration, and we used to have very long conversations रात को 2 बजे तक 3 बजे तक in his home itself, and that helped me, that sort of initiated me in public administration. तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट उठना स्टार्ट हुआ. माई फादर इज़ ऑल्सो अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, तो एक सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का इनसाइडर व्यू भी था मेरे पास, जिसने मुझे एग्जामिनेशन में थोड़ा हेल्प किया. So these are the major reasons why I went for public administration. Another important reason, जो कि एक practical reason है, is that कि I think personally कि public administration का general studies के साथ overlap सबसे ज़्यादा है. अगर आप देखें तो पूरा का पूरा GS पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ओवरलैप करता है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. सो पेपर 1 इज़ बेसिकली योर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एंड पेपर 2 इज़ योर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. तो जो पेपर 2 है पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो GS पेपर 2 जो मेन एग्जाम में आप लिखते हैं उससे ओवरलैप करता है. अदर देन दैट, इकोनॉमिक्स GS पेपर 3 से काफ़ी ओवरलैप करता है, बिकॉज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो सारी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये जितनी चीज़ें हैं ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही कवर अप हो जाती हैं. सो आपको वहाँ पे हेल्प मिलता है. उसका एथिक्स में काफ़ी हेल्प मिलता है. ये सारी इंटीग्रिटी, सोशल ऑडिट, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, करप्शन, RTI, ये सारे आप एथिक्स के पेपर के लिए भी पढ़ते हैं, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी पढ़ते हैं. सिमिलरली सोशल इश्यूज़ में आपको इसका काफ़ी हेल्प मिलता है.
NGOs, self-help groups, voluntary organizations, all these are covered in public administration as well. So this huge overlap with general studies is what gives you an edge in public administration, which is why I went for public administration. Now that's why I chose public administration. What books did I refer to and what coaching did I take? Like I said, कोचिंग मैंने ऐसे क्लासरूम कोचिंग नहीं की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की. मेरे मेंटोर थे स्मर रंजन, उन्हीं के साथ वीकेंड्स पे बैठ के जो बातें होती थी और डिस्कशंस होते थे, दैट वाज माय कोचिंग, बस वही था. उसके अलावा आई प्रिपेयर्ड इट ऑन बाय माई सेल्फ. टेस्ट सीरीज़ लिखी, आई रोट टू टेस्ट सीरीज़, एक GS कोर में लिखी और एक पवन कुमार के यहाँ लिखी. दोनों जगह आई रोट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टेस्ट सीरीज़, which I think is important also. So no classroom coaching for public administration as such. What books did I refer for public administration? So let me start with paper 1. Paper 1 में you can go for मोहित भट्टाचार्य की 3 बुक्स आती हैं. New Issues and Perspectives in Public Administration, Restructuring Public Administration and Social Issues and Development Administration. These 3 are very very good books. इसके अलावा you can refer to Nicholas Henry for the growth of public एडमिनिस्ट्रेशन, जो वेरियस पैराडाइम्स में हैं. फॉर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर बजटिंग बेसिकली निकोलस हेनरी इज़ वेरी गुड इन दैट. इग्नू का मटेरियल आप रेफ़र कर सकते हैं, इग्नू BA एंड MA का मटेरियल. उसके अलावा यू कैन रेफ़र टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी प्राइमर. इट्स अ बुक बाय H. George Fredrickson. यू कैन रेफ़र टू दैट. सिमिलरली देयर इज अ पब्लिक पॉलिसी थ्योरी प्राइमर ऑल्सो, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर पब्लिक पॉलिसी. कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए R. K. अरोरा की एक बुक आती है. बेसिकली इट्स नॉट अ बुक, वो उनकी PhD थीसिस है, डॉक्टरल थीसिस है, जो कि अब एज अ बुक सर्कुलेट हो गई है. तो जस्ट कीप इन माइंड कि वो 70s में लिखी गई थी, तो वो कोल्ड वार का एरा था एंड इट्स रिटन इन अ वेरी डिफरेंट सेट, इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. जो अभी का कॉन्टेक्स्ट है उससे काफ़ी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो सेटअप है. MP शर्मा है, BL फारिया है, ये दोनों आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर वेरियस टॉपिक्स. प्रसाद एंड प्रसाद फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स. ऑल्दो मुझे कुछ शिकायतें हैं उस किताब से, बट आई डोंट थिंक कोई और ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है. वो किताब अच्छे एक सॉर्ट ऑफ वेल एडिटेड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यू कैन रेफ़र टू दैट. स्टीफन रॉबिन्स आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. जो बेसिकली जो मोटिवेशन, मोरल, लीडरशिप, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उसके लिए यू कैन रेफ़र टू स्टीफन रॉबिन्स. पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ऑथर, समथिंग कॉक्स, समथिंग आई डोंट रिमेंबर, some foreign author. So basically these are the books you should be referring for paper 1. ये पेपर 1 का मटेरियल है आपका. पेपर 2 के लिए आप सेकेंड ARC की रिपोर्ट्स पढ़ें. और कुछ लोगों को लगता है कि रिपोर्ट्स थोड़ी आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि 2008-9 में आई थिंक लास्ट रिपोर्ट आई थी इनकी और 10 से 11 साल निकल गए हैं. ऐसा नहीं है, ये रिपोर्ट्स अभी भी बहुत रेलेवेंट हैं. तो आप सेकेंड ARC तो पढ़ें ही. 16 रिपोर्ट्स हैं जहाँ तक मुझे याद है, शायद 15 या 16 रिपोर्ट्स हैं उसकी, और काफ़ी वलमनस रिपोर्ट्स है. एक रिपोर्ट 400-500 पन्ने की है, तो 16 रिपोर्ट पढ़ने में काफ़ी वक्त लग जाता है. द पॉइंट इज़ कि कई सारे लोग सिर्फ उसकी समरी पढ़ लेते हैं. आई वुड से कि आप समरी पढ़ सकते हैं रिपोर्ट्स की, बट कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसको मैं एडवाइस करूँगा आप पूरा पढ़ें, फ्रॉम कवर टू कवर, फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज. रिपोर्ट्स ऑन local governance, panchayati raj, on police reforms, on personnel administration, on citizen centric administration, on disaster management. ये ऐसे कुछ उसकी 6-7 रिपोर्ट्स हैं जो आपको पूरी पढ़नी चाहिए. आप पूछी कमीशन की रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, सेलेक्टिवली पढ़ें उनको आप. R. K. अरोरा की एक बुक आती है, ये वही R. K. अरोरा हैं जिनकी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती थी फॉर पेपर 1. उनकी एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है. BL फारिया की बुक आती है. PL फारिया की पेपर 1 के लिए भी बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है. जो पेपर 2 की बुक आती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी काफ़ी अच्छी है BL फारिया की. इसके अलावा आप योजना मैगज़ीन पढ़ें. योजना मैगज़ीन बेसिकली इशू बेस्ड होता है, सो एवरी मंथ दे विल कवर 1 इशू इन डेप्थ. तो लेट्स से अभी 2 साल पहले पंचायती राज 73rd 74th अमेंडमेंट के 25 साल पूरे हुए थे, सो दे हैड एन इशू डेडिकेटेड कम्प्लीटली ऑन लोकल गवर्नेंस. तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पूरा पढ़ लें. सो बेसिकली अगर आप पूरे साल का योजना देखें जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो यू वुड रियलाइज़ कि उसमें 6-7 इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत रिलेटिव होते हैं, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. बट कभी योजना का इशू आ जाएगा ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो ख़ास करके आप
योजना के वो इश्यूज़ तो काफ़ी डिटेल में पढ़ें जो कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें। सो दैट्स देयर योजना। करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहें अपना। नीति आयोग की वेबसाइट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। नीति आयोग की वेबसाइट पे आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स एंड नीति आयोग बहुत सारा रिसर्च पब्लिश करता है, बहुत लिटरेचर मिलेगा आपको, बहुत सारी केस स्टडीज़ मिलेंगी, बहुत सारे वो मिलेंगे आपको, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगे। तो वो थोड़ा आप सॉर्ट ऑफ लॉस्ट हो सकते हैं क्योंकि इतना डॉक्यूमेंट्स है कि आप भटक जाएंगे, क्या पढूं क्या ना छोड़ूं। तो उसमें आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा। नीति आयोग की वेबसाइट में आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट है जो अपना ईयरली रिपोर्ट्स, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, कमेटी की रिपोर्ट्स ये सारे पब्लिश करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि अपना फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते रहती हैं, तो आप उनको भी देखते रहें, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपका पेपर 2 कवर करेंगी। नाउ कमिंग टू द आंसर राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द वे आई सी, मैं हर आंसर के 3 पार्ट्स देखता हूँ। देयर इज़ द लेंथ ऑफ द आंसर, देयर इज़ द कंटेंट ऑफ द आंसर एंड देन देयर इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। काफ़ी लोग लेंथ पे फोकस करते हैं बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो इन सम अदर प्लेस कि एक वो कॉलेज माइंडसेट होता है कि 15 नंबर के क्वेश्चन में इतने पेजेस लिखने हैं, इतना लिखना है। लेंथ इज़ द मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। What matters is the content and presentation of your answer, and what matters the most is the presentation of your answer. अगर आपका कंटेंट थोड़ा 19-20 भी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आप अच्छे नंबर लाएंगे। आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दें, केस स्टडीज़ कोट करें जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंसर लिख रहे हैं। हर एक पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल या एक केस स्टडी ज़रूर कोट करें। आप डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें। डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आपको बिफोर हैंड प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप वहाँ पे इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाएंगे, उनको आपको शुरू से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपको उसको बिफोर हैंड प्रैक्टिस करके जाना है, आप ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि बेसिकली डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स का मोटिव ये है कि वो आपके आंसर की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर आप कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट बना रहे हैं, फिर आधा पेज स्पेंड कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने में कि मैंने क्या बनाया है, इसका क्या मतलब है, तो दैट इज़ नो पॉइंट। फिर आप ना ही बनाएं तो बेहतर है। वो आपके इन्फॉर्मेशन को कंडेंस भी करना चाहिए। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आप सेम इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं या पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो वो आधा पन्ना लेता है, बट आप एक फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो पूरा पेज ले लेता है। तो बेटर है कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, डायग्राम ना बनाएं, क्योंकि लाइक आई सेड दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, कि वो आपके सारे इन्फॉर्मेशन को कंडेंस करके एक ल्यूसिड क्रिस्प मैनर में एग्जामिनर के सामने रखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर एक नज़र डाले उसके ऊपर एंड ही इज़ सेटिस्फाइड कि हाँ इस बंदे को ये सारा पता है, सब कुछ पता है। उसके बाद फिर अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करें। एंड जैसा कि मैंने बोला कि जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खास करके, आप ये ज़रूर करें कि आप एग्जाम्पल्स ज़रूर कोट करें आर्ग्यूमेंट्स में, वो बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल्स कोट करना। आप इंटरलिंक करें पेपर 1 पेपर 2 को। तो जब आप पेपर 2 के आंसर्स लिख रहे हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नेंस पे, तो आप रिक्स को कोट कर सकते हैं। सेम गोज़ विद पेपर 1। पेपर 1 में जब आप एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं तो पेपर 2 के एग्जाम्पल्स डालें, तो वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एक तरह से लिंकअप होता रहेगा। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बीच में सॉर्ट ऑफ बहुत डायनेमिक हो गया था 2012 ऑनवर्ड्स। काफ़ी ऐसा लोगों को लगता था कि एक हिडन सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। आई डोंट थिंक कोई हिडन सिलेबस है। द पेपर हैज़ गॉटन डायनेमिक। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज़ नॉट अ हार्डकोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक, बट यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है इन डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ दिस इज़ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक, बट उसको यूपीएससी इस तरह से मोल्ड करता है कि वो काफ़ी डायनेमिक बन जाता है कई बार। तो आपको जो पेरिफेरल एरियाज़ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे फॉर इंस्टेंस रेगुलेटरी कमीशंस हैं, तो उनके केस स्टडीज़ और पेरिफेरल एरियाज़ को भी आपको स्टडी करते रहना है। फॉर कहाँ से स्टडी करेंगे आप? लाइक आई सेड, आप इसको योजना, करंट अफेयर्स, नीति आयोग की वेबसाइट, और जो भी आप करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, वीडियोज़, चैनल्स जो भी फॉलो करते हैं, वहाँ आपको इसके लिए कंटेंट मिलेगा। Golden opportunity for all UPSC CSE aspirants. Unacademy has brought the world's biggest gamified battle, Unacademy Combat, absolutely free of cost. In this battle, you will be competing with thousands of aspirants. The combat is held on every alternate Sunday. Hence, the coming combat will be on 17th of January 2021 at 11 a.m. Enroll for free in this test series and get a chance to win Unacademy subscription and amazing Amazon vouchers if you give the combat test live.
What is Unacademy Combat? It is the golden opportunity for all UPSC CSE aspirants to check their knowledge on all the subjects. In this quiz, you will be getting the top-notch questions by Unacademy's top educators, and later they will be providing you with a detailed video solution. After every question, you will be getting the right answer for the question, and you can see your rank and rating on the leaderboard if you are giving the Unacademy Combat quiz live. Do not wait, start your preparations now with Unacademy Combat. To enroll in this quiz, click on the mentioned link in the description, download the Unacademy app, select your goal as UPSC CSE, enroll in Unacademy Combat. Use your code DKT10 to unlock this quiz and complete your preparation with Unacademy. Let's crack it. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बोलने के लिए कि कुछ पार्ट इसका इकोनॉमिक्स से ओवरलैप करता है, खास करके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारे पार्ट्स। तो आप इसमें किसी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बुक का भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने दत्तन सुंदरम यूज़ किया था फॉर वेरी सिलेक्टेड टॉपिक्स। FRBM एक्ट कैसे काम करता है, या डिसइन्वेस्टमेंट या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में क्या इश्यूज़ हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए एक सरकार की रिपोर्ट भी आती है। मैंने आपको कहा था कि आप सरकारी वेबसाइट्स ज़रूर चेक करते रहें कौन कौन सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, खास करके ऑप्शनल से रिलेटेड जो भी वेबसाइट्स है। सो देयर इज़ अ रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द रिपोर्ट। इट्स बेसिकली एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन इंडिया। तो उनके क्या प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स हैं, कितने लॉस में जा रही हैं, कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, कितने डिसइन्वेस्टमेंट किया हमने, क्या एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, क्या आउटपुट ऑन कैपिटल है, इंक्रीमेंटल आउटपुट ऑन कैपिटल है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगा। अगेन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक्स पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सो दिस इन नटसेल वाज द सोर्स मटेरियल आई यूज्ड। आंसर प्रैक्टिस करें, आंसर्स कैसे लिखने हैं, लूसिड कैसे बनाने हैं, डायग्राम्स, न्यूज़पेपर्स, एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स, केस स्टडीज़, linking paper 1 and paper 2, I have told you about this. इंट्रोडक्शन पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी शुड बी इन पॉइंट फॉर्म। पैराग्राफ में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्रेफर करता हूँ पॉइंट फॉर्म में लिखने में। कंक्लूजन शुड बी ऑन अ पॉजिटिव नोट, कोई वे फॉरवर्ड के साथ ही एंड करें उसको। सो दिस इन नटसेल वाज अबाउट माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।